Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to discuss about moments. What is moments? A moment is a specific quantitative measure of the shape of a frequency distribution. The two important characteristics of a frequency distribution are skewness and kurtosis. Moments about mean, that is known as the central moments. The moments of an ungrouped data, the rth moment about mean of n observations is given by the formula mu r is equal to summation of xi minus x bar its power r divided by n, where r is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, and x bar is the mean of xi's. And now moments of a grouped data. If the observations are x1, x2, x3, xn have the frequencies f1, f2, f3, fn respectively, then the rth moment about mean is given by the formula mu r is equal to summation fi xi minus x bar power r divided by n, where r is equal to 0 to n and x bar is the mean of given data and this n is the summation of f, that means the sum of all the observations. And now here in ungrouped data fi is not there, but for a grouped data we have fi is there. That means we have to take the sum of xi minus x bar power r into fi. We will discuss in the examples. And now some important points. Mu 0 is equal to 1. That means if the value of r is 0, then mu 0 becomes summation of fi xi minus x bar power 0. As you know, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 होती है, तो ये हमारे पास ओनली क्या बन जाएगा समेशन fi. तो समेशन fi बाई समेशन fi दोनों सेम है, दैट इज इक्वल टू 1. और जो μ1 है उसकी वैल्यू 0 होती है. μ1 के लिए हमारे पास क्या होता है fi xi माइनस x बार पावर 1 डिवाइडेड बाई n. अब 1 है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi माइनस x बार इंटू समेशन ऑफ fi बाई n. समेशन ऑफ fi और n ये दोनों सेम है क्योंकि n हमारे पास क्या है समेशन ऑफ f, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. यस, ये फॉर्मूला हमारे पास मीन का है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x बार माइनस x बार इज इक्वल टू 0. ओके, एंड नाउ the second central moment, that means mu2. Mu2 is equal to the variance, and this mu2 means summation of fi xi minus x bar square by n, that is equal to variance. ठीक है, ये हमारे पास जो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है दैट इज द वेरिएंस. And now we have to consider the example. Find the first four central moments for the following data 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 17. So first of all we have to find the mean. Mean, that means sum of all observations divided by number of observations, that is equal to 80 by 8. That means you will get x bar is 10. And now we have to make the table. In first column we have to write xi, in second column xi minus x bar,
That means 4 minus 10, because 10 is the mean. 4 minus 10 is minus 6. 4 minus 7, 7 minus 10, minus 3. 8 minus 10, minus 2. 9 minus 10, minus 1. 10 minus 10, 0. 12 minus 10, 2. 13 minus 10, 3. 17 minus 10, 7. ओके, अब इनका सम भी फाइंड कर लेते हैं. इनका सम हमारे पास क्या है? 0. ठीक है, अब हमें फर्स्ट 4 फाइंड करने हैं. फर्स्ट 4 के लिए इसकी पावर 0 होती है, और यहाँ पर इसका स्केयर भी फाइंड कर लेते हैं. एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 2, यानी कि ये जो वैल्यू है सेकेंड कॉलम का स्केयर किया. माइनस 6 स्केयर 36, माइनस 3 स्केयर 9. ठीक है, सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका हमने स्केयर किया थर्ड कॉलम के अंदर. और जो फोर्थ कॉलम है एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 3, ये फोर्थ कॉलम है, तो इसका हम क्यूब कर रहे हैं. क्यूब करें, या जो ये स्केयर वाली टर्म्स हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द क्यूब. क्योंकि स्केयर ऑलरेडी है, तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट क्यूब. दैट मीन्स माइनस 216, माइनस 27, माइनस 8, 1 एंड सो ऑन. ठीक है, और इसका भी सम हमने फाइंड किया, दैट इज 126. और एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 4, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब को हम सेकेंड कॉलम वाले ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये फोर्थ कॉलम को सेकेंड से हमने मल्टीप्लाई किया. देन यू विल गेट 1296, 81, 16 एंड सो ऑन. और इन सब का सम कितना आ गया? 3892. ठीक है, अब कैलकुलेशन साथ साथ करके देख सकते हो. एंड नाउ म्यू वन इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार पावर एन, तो इसकी वैल्यू क्या है? 0/8, 0. म्यू टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर बाय एन, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 112/8, दैट मीन्स 14. एंड म्यू थ्री एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब बाय एन, 126/8, दैट मीन्स 15.75. म्यू फोर एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 4 बाय एन. ठीक है, ये वैल्यू है 3892 डिवाइडेड बाय 8, यू विल गेट 486.5. I hope you understand this. See the next example, because here we have the frequency distribution. Observations are xi, fi number of frequencies, and first of all we have to find the mean. For the mean we have to multiply this fi xi, and their sum is get 250, and the number of observations is 25. So x bar is summation of fi xi divided by summation of fi, 250/25, that means 10. Okay, and that is 10. And now in fourth column we have to find xi minus x bar. Xi is 5, 5 minus 10 minus 5, 7 minus 10 minus 3, same वैसे. Then you have to find xi minus x bar square, xi minus x bar cube, xi minus x bar पावर 4. ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है. अगर सिंपल गिवन होता तो हम इन सब का सम ले लेते, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सब को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे. सेकेंड कॉलम से -5 इंटू 4, दैट मीन्स -20. ठीक है, और -3 इंटू 4, -12. ओके, इसको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 0. देन एफ आई एक्स आई बार को अगेन, ये जो कॉलम है ना एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, ये स्केयर आ जाएगा. फिर सेम क्यूब वाले को मल्टीप्लाई करोगे एफ आई से, फिर 4 पावर वाले को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन सब का सम हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, इन सब का सम हमने कंसीडर कर लिया. अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. म्यू वन फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, summation of fi into xi minus x bar by n, 0/25, 0. सेम इसी तरह से म्यू टू वाला 324 डिवाइडेड बाई 25, 12.96. म्यू थ्री 726/25, 29.04. म्यू फोर 14328 divided by 25, that means 573.12. I hope you understand this. And now we have skewness.
Skewness is a measure of symmetry, a symmetrical distribution. In a symmetrical distribution, mean is equal to median is equal to mode. A symmetrical distribution will have a skewness equal to 0. In other words, the frequency curve of a frequency distribution is not symmetrical. If the frequency distribution curve is not symmetrical, then distribution is said to be skewed or to have a skewness. For a frequency curve of a symmetrical distribution or normal distribution, as shown in this figure, in this curve, here we have the observations, mean, median and mode. All these are same. ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस तो हम ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करते हैं और अलोंग वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर करते हैं और फिर इसका हम ये कर्व बनाते हैं. तो कर्व हमारे पास ये सिमेट्रिकल है, यानी कि सेम शेप है मीडियन के इधर भी और इस तरफ भी. ठीक है, ये जो मिड वैल्यू है इसके इस तरफ भी सेम है, इस तरफ भी सेम है. ठीक है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायग्राम है. And now we have the types of skewness. Types of skewness, first one is the positive skewness. In positive skewness, the skewed distribution on the tail on the right hand side is longer. यानी कि जो इस केस के अंदर पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर ये जो टेल है हमारे पास, तो ये टेल हमारे पास राइट हैंड साइड पर है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल के लिए तो हमारे पास ये कर्व आती है. ठीक है, और लेकिन पॉजिटिव के लिए ये जो राइट हैंड साइड वाली ये जो पार्ट है ये राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है. ठीक है, और पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए मीन मीडियन से ग्रेटर है और मीडियन मॉड से ग्रेटर है. ओके, और नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर हमारे पास ये जो टेल है, टेल लेफ्ट साइड पर लॉन्गर है. ठीक है, ये वाली जो कर्व है ये तो सिमेट्रिकल के लिए है और ये नेगेटिव स्क्यूनेस के लिए है. ठीक है, नेगेटिव स्क्यूनेस में ये जो टेल लेफ्ट साइड पर लॉन्गर होती है. मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड. ओके, and now we have the measures of skewness. There are two measures of skewness to measure the extent and direction of asymmetry. ठीक है, direction of asymmetry, that means it is positive or negative. टेल इसकी किस तरफ है, और एक्सेंट, that means जो इसका एक्सेंट है that tells extent of the asymmetry and whether it is positive or a negative. That is the absolute measure of skewness. The first absolute measure of skewness is based on the difference of mean and mode. There are two absolute. First is the first absolute, then is the second absolute. और first absolute के लिए हमारे पास क्या है कि जो mean और median का डिफरेंस है या मीन और मॉड का डिफरेंस है. दैट मीन्स एब्सोल्यूट स्क्यूनेस इज मीन माइनस मॉड और मीन माइनस मीडियन. दोनों में से हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमारे पास गिवन है, मोड गिवन है तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे, मीडियन गिवन है तो सेकेंड वाला अप्लाई करेंगे. और स्क्यूनेस पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव कब होगा? जब मीन किससे, मोड से ग्रेटर होगा या मीडियन से ग्रेटर होगा. और ये स्क्यूनेस नेगेटिव कब होगा? जब मीन मीडियन से लेस होगा. ओके, एंड नाउ वी हैव the second absolute measure of skewness. Second absolute measure of skewness is based on the quartiles. In a symmetrical distribution, Q1, Q3 are equidistant from Q2. That means Q3 minus Q2 is equal to Q2 minus Q1. और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, Q3 minus Q2 is not equal to Q2 minus Q1, then the distribution is asymmetrical. अब ये Q1, Q2, Q3 ये हमारे पास क्वार्टाइल्स होते हैं. ठीक है, या इकोनॉमिक्स में आपने किए हुए हैं. फिर भी हम नेक्स्ट इसमें कल इसका एक एग्जांपल ले लेंगे.
In this case, absolute measure of skewness can be measured along the by the formula. Absolute skewness is Q3 plus Q1 minus 2 times Q2. If Q3 minus Q2 is greater than Q2 minus Q1, then skewness is positive. And if Q3 minus Q2 is less than Q2 minus Q1, then skewness is negative. And now rules to find the degree of skewness. If the skewness lies between minus 0.5 to 0.5, then the data is fairly symmetrical. And if the skewness lies between minus 1 and minus 0.5, that is negatively skewed, or between 0.5 and 1, then the data is moderately skewed. Okay. And now third point, if the skewness is less than minus 1, that is negatively skewed, and if the skewness is greater than 3, then it is positively skewed. The data is highly skewed. And now the relative measures of skewness. The relative measures of skewness are used to compare the skewness of two or more distributions. Some important relative measures of skewness are given below. Karl Pearson's coefficients of skewness. This method is frequently used for measuring skewness. And now, Karl Pearson's coefficients of skewness is denoted by SKP, and it is defined by SKP is equal to mean minus mode divided by standard deviation. If we can find by this empirical formula, that means mode is equal to 3 times median minus 2 times mean. That means mean minus mode, क्योंकि इसमें हमारे पास मीन माइनस मोड है, तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन. ओके, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, इसमें मीन मोड को सब्ट्रैक्ट किया, मीन में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट दिस वन. एंड नाउ this Karl Pearson's coefficient of skewness becomes 3 times mean minus median divided by standard deviation. Okay, and now see the example. The mean, median and standard deviation of a frequency distribution are 45, 52 and 75. Calculate the Karl Pearson's coefficient of skewness. That means here mean is 45, mode is 52 and standard deviation is 15. Here यहाँ पे 15 होना चाहिए, 75 लिखा हुआ है, मिस्टेक है. ओके, एसकेपी हमारे पास क्या होता है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन. 45 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 15, दैट मीन्स माइनस 7 बाय 15, एंड यू विल गेट माइनस 0.467. दिस इज द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स. अब ये जो वैल्यू है किसमें लाई करती है, ये माइनस 0.5 टू 0.5 के बीच में लाई करती है. इट मीन्स द डाटा इज फेयरली सिमेट्रिकल. ओके, next example, for a certain frequency distribution, mean is 180, median is 175, standard deviation is 25. Find the Karl Pearson's coefficient of skewness of distribution. तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे मीडियन गिवन है, तो मीडियन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो 3 इंटू 180 माइनस 175 डिवाइडेड बाय 25, यू विल गेट 0.6. 0.6 0.5 से ग्रेटर है, 0.5 से ग्रेटर है, तो ये हमारे पास क्या है, मॉडरेटली स्क्यूड. ठीक है. और नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 45, मीडियन इज 48, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.4. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन है, यहाँ पर माइनस 0.4 है. ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन मीडियन मोड एसकेपी माइनस 0.4 है,
ये ठीक कर लेना, -0.4 है। ओके, SKP हमारे पास हो गया 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड कर लिया। सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फ्लोइंग डाटा। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज के साथ आ रहा है, फ्रीक्वेंसीज के साथ है तो हमारे पास ये XI FI, तो FI XI, ठीक है, XI स्केयर FI XI स्केयर। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास मीन फाइंड करेंगे, तो मीन हमारे पास FI XI का सम डिवाइडेड बाय 40, 322 डिवाइडेड बाय 40, 0.8.05, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हमने ये टेबल बनाई है, XI स्केयर FI XI स्केयर, FI XI स्केयर का कितना सम है 2780। ओके, देन स्टैंडर्ड डिवीजन 1 by n into square root of n into summation of FI XI square minus summation of FI XI square, ठीक है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट 2.17। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए जो आपने पहले वाले मेथड किए हैं, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट मेथड इकोनॉमिक्स के अंदर, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें पर्टिकुलरली ये मेथड अप्लाई करना है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2.17, और फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी वाली ग्रेटर है, 14 किसकी है, 8 की है, तो मोड इज 8, ठीक है। मोड हमारे पास 8 आ गया, मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। तो इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन ऑफ स्क्यूनेस मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये 0.23 है, ये लेस देन 0.5 से है, दैट इज फेयरली सिमेट्रिकल। ओके, एंड नाउ you have to do the exercise. Which exercise? Yes, 13.5 up to 10 questions. Okay, thanks and have a nice day.